You combined all the burgers, all the pizzas, all your dresses put together. That value of real estate is very, very high. The younger generation are very much aware of what is going on as far as the real estate is concerned. They know what luxury is. They know what affordable housing is. They know the micro market trends. So the consumers are more informed. By 2030, it's going to be $1 trillion. 20% of the Indian economy is going to be driven by real estate. आप अंधेरी में लो, आप गोरेगांव में लो, आप पहला घर लो, आप फोकस ऑन योर फर्स्ट होम. दैट इज इम्पॉर्टेंट. हर इंसान आज जो बिलियनर है वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये लेके आया है. कहीं ना कहीं वो एक रेलवे स्टेशन पे सोया है और खाना भी जो खाया है वड़ा पाव भी खाया है. जर्नी वहाँ से शुरू होके 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 वो आज एक अल्टा माउंट रोड पे नेरीमन पॉइंट पे उसका एक ऑफिस है. So this is the happiness which I get. This is the pride I get. This is our story. This is the India story, which we all as Indians, as Bharatiya, should be very proud of. और ये जो opportunity आज आ रही है, this is the moment I want to tell the youth of this country. ये ऐसा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा. Hello and welcome to another episode of TYS Tell Your Story. मैं हूँ विज्ञा गुप्ता और इस पॉडकास्ट में हम उन लोगों से बात करते हैं जिनकी जर्नीज हमें सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और नजरिए कुछ नया सीखने का मौका देते हैं हमें. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी प्रोफेशनल जर्नी और इंडियन रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी दोनों ने साथ साथ एक लंबा सफ़र तय किया है. 3 दशकों से भी लंबी इनकी जर्नी में एक्सपीरियंस भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी और हर नए चैप्टर के साथ कुछ नया क्रिएट करने का एक जज्बा भी है. रियल एस्टेट, मीडिया, ब्रांडिंग और लग्जरी, उन्होंने हर रोल को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ डिफाइन किया है. ब्रोकर से बैंकर, स्टोरी टेलर से इकोसिस्टम बिल्डर तक उनकी जर्नी ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स और रीइन्वेंशन की कहानी है. आज थ्रू द हाउस ऑफ SHK दे आर बिल्डिंग व्हाट दे कॉल अ लग्जरी इकोसिस्टम फॉर इंडिया. Please welcome Mr. Sangeet Hemant Kumar, popularly known as SHK. Sangeet ji, welcome to our story. I'm so glad I'm here. Thank you for inviting me. Absolutely. And I'm feeling so blessed talking to you and being in the studio of Z. It's an amazing feeling. Absolutely, sir. So, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल रियल एस्टेट is a very favorite term for investors. ठीक है, तो इसमें आप के 35 इयर्स के एक्सपीरियंस हैं, आपने इतने रोल्स निभाए हैं, तो इसमें आप कैसे शुरुआत करना चाहते हैं? आप हमें कैसे बताएंगे कि 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं रियल स्टेट में, जो कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और अगले आगे 3, 4, 5 सालों में क्या ट्रेंड ये जाने वाला है? इफ यू कैन. So very interesting. First of all, we need to understand. अगर हम देखें जो रियल एस्टेट है, बहुत पुराना मनोज कुमार जी का एक पिक्चर भी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान. तो मकान जो है वो हमेशा पहले से, अब से और आगे फ्यूचर में भी आपका मेन एसेट रहने वाला है. सबसे बड़ी बात यह है कि रोटी और कपड़ा जो पैसे हम खर्च करते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस, मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, most expensive Italian cuisine, the most expensive world's most expensive restaurant you can have. But when you buy a house, the money, the value which is of the property is much, much higher. You combined all the burgers, all the pizzas, all your dresses put together, that value of real estate is very, very high. So सबसे पहली बात तो ये है. I don't want to do a lot of comparison. I will keep it very simple. If we just compare, there have been 3 to 4 major episodes in this country which has a huge impact and an implication on the industry. So we had the RERA which came in, which is very important because obviously अगर आप IRDA देखें इंश्योरेंस में, अब SEBI देखें for share market, for the security business. So whenever in government regulator comes, it disrupts the entire market because it creates policies, it creates rules, and all of the so-called regulations are obviously consumer centric. It is for the consumer. So RERA came in to protect the consumer. उस टाइम से अगर हम पुरानी पिक्चर देखें तो बिल्डर हम उसको बोलते थे, डॉन से के ही कंपेयर करते थे. बहुत सारी पिक्चरों में उनको गुंडा ही दिखाया गया है.
सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद शूज में ही दिखाया है, और वो कुछ टाइम तक, कुछ हद तक वो सही भी था, वो सही भी था। अच्छा, नॉट दैट दे वर ऑल डॉन्स, बट क्योंकि इंडस्ट्री उस हाई कैश इन्वॉल्वमेंट था जी, परमिशंस के पैसे देने पड़ते थे, तो बिल्डर वर नॉट वेरी वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक। रेरा आने के बाद यू हैड टू बिकम कंज्यूमर सेंट्रिक। तो जब आप कंज्यूमर सेंट्रिक बन जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चेंज लाना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन केम बिकॉज ऑफ रेरा। Then the biggest debacle happened was the NBFC crisis. Okay. That's when the issue started. So all these came as tsunami at the point from a developer perspective. एक साथ उनके पास बहुत सारे ये so called challenges आए, और वहां पे जो डिस्ट्रप्शन हुआ, प्रोजेक्ट उनके जो हाथ में थे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। बैंक जो है, आरबीआई ने एक रेगुलेशन निकाल दिया कि यू कैन नॉट गिव मनी। ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द रियल एस्टेट सिनेरियो। मौका देखा कॉर्पोरेट्स ने, गॉडरेज, टाटा, big names, household names, they realized that this is an opportunity for them to enter the business. So suddenly you had corporate houses. So from an unstructured industry, unorganized industry, very, very promoter-driven industry, you started, we transformed to a compliant industry. And the consumers also changed. जो पुराने जमाने के आपके अगर पेरेंट्स ने या दादा ने घर लिया था, कंज्यूमर चेंज लाइक हाउ? आई अंडरस्टैंड कि ट्रेंड चेंज होता है, इवॉल्व होते हैं। मैं आपको सोच में बताता हूँ चेंज कैसे हुआ। आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने घर लिया, तो आपको आके वो बोल देते थे कि हमने घर ले लिया। बच्चों का उसमें कोई रोल नहीं था। आज बिल्कुल उल्टा हो गया। अच्छा, आज जो बच्चे हैं, बिकॉज दे आर सो डिजिटल savvy, we have so many various portals, listing websites, there are reels being created. Absolutely. So the younger generation are very much aware of what is going on as far as the real estate is concerned. Okay. They know what luxury is. They know what affordable housing is. They know the micro market trends. So the consumers are more informed at this moment of time. जो हमारे पुराने लेगेसी जिसको हम बोलते हैं, जो ओनर्स थे, उनको एक मालूम है कि ये माइक्रो मार्केट का क्या रेट है, क्या प्राइस है, कौन सा घर बन रहा है, कौन बिल्डर है, बट उनको चेंजेस नहीं मालूम। जो चेंजेस हो रही हैं, इंटीरियर्स में चेंजेस हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, मार्केटिंग के तरीके चेंजेस हो रहे हैं, ब्रांडिंग के तरीके चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज ऑल ड्रिवन बाय द यंगर जनरेशन। सो दिस इज, वी आर एट अ वेरी वेरी एक इंटरसेक्शन पे है, जहाँ पे आपके लेगेसी ओनर और लेगेसी डेवलपर, लेगेसी बायर, उसी इंटरसेक्शन पे उसी का एक मिरर है। तो यूथ है, जो यंग है। डेवलपर की अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड विद अ लेगेसी ओनर, विद अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। अब उनके डॉटर, उनकी बहुएं, उनकी सिस्टर, सब जनरेशन हो गया। तो द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट इज नाउ बिकम जनरेशन, and it has also become generation wealth creation. Correct. So today, for a gentleman or a family who's buying a house, he or she is not just buying a house for himself or herself. He plans it for the children. That is how this is becoming now. Actually, it's becoming a generation wealth creation. Sir, generational wealth creation तो एक तरीके से एसेट हमेशा से ही रहा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला। लेकिन जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं, एक चीज मैं बोलूंगी जो बहुत क्लियरली अब सामने आता है, आपने अभी जैसे दो चीजें बोली, अफोर्डेबल हाउसेस और लग्जरी। तो आजकल इन दो टॉपिक्स को अगर हम अलग वर्टिकल्स को लेके, लग्जरी होम्स, लग्जरी प्रॉपर्टी एंड अफोर्डेबल होम्स, तो दो टाइप के बायर्स बढ़ चुके हैं। एक है इन्वेस्टर्स एंड एक है एक्चुअली जो होम बायर्स हैं जिनको घर बसाना है। अफोर्डेबल एक्चुअली कोई अभी वर्ड रहा ही नहीं। अच्छा। और दिस, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर लिसनिंग, द पॉलिसीज आर नॉट फेवरेबल to this industry from a developer point of view to actually create affordable home. So there is a problem there. We take a lot of time in the permissions. So because of this, so anyway, so I will turn this question around. What is good happening? Thanks to the transportation, the infrastructure development, where we are seeing 50,000 kilometers of highways and roads being constructed. अगर मुंबई शहर को ही देख ले, लेट्स हम मुंबई में बैठे तो मुंबई की बात कर ले, दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात कर ले, इतना डेवलपमेंट एक साथ में पिछले जो 4-5 साल में हुआ है। एक एयरपोर्ट नहीं, 2 एयरपोर्ट नहीं, 3 एयरपोर्ट बन रहे हैं। जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं थे वहां एयरपोर्ट बन रहे हैं। आपकी रेलवेज,
आप अगर देखें वंदे भारतम itself Exactly. is changing the experience of traveling from point A to point B. Absolutely. So all these changes, Mhm. रियल एस्टेट में होता क्या है मेन? अगर एक जमीन है, एक शहर है, एक सब लोकेशन है, वहां पे अगर कोई भी एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो दैट बिकम्स इनएक्सेसिबल. करेक्ट. The minute you're opening and you're creating those access by way of highways, by way of roadways, bridges, sea link, connectivity जो बढ़ती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वहां पे that becomes accessible, that becomes, then a developer will go and develop it, and that's how you as a consumer will want to go and buy over there. Pandemic के पहले the youth were not interested in buying home, they wanted to be free, उनके जॉब चेंज हो रहे थे. अगेन हम जो बात कर रहे हैं मोबिलिटी की, आज उनका जॉब कैलकाटा में है, कल दिल्ली में है, परसों हैदराबाद में. they're looking for growth. So we got to also understand that today's generation is very, very growth oriented. Absolutely. They're very, very professional. They're career oriented. Correct. They want to do something. They want to be something. So for them, the buying a home was actually blocking all their money into an asset which they were not even understanding, they were not valuing. But pandemic के बाद problem हो गया. They started realizing that you want a home because that's a security. Suddenly a home which was supposed to be just being a home for you to stay actually became a symbol and a reason of being secured. So that changed the entire thing. The dynamics have changed, which is there, which was before the pandemic and after the pandemic. तो ये एक बात समझ में आ जाती है कि उनको घर लेना है, और आज जो डेवलपर है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो उसको एड्रेस कर रहा है. सो यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 bedroom स्टूडियो apartment, 1.5 bedroom, 2 bedroom, 2.5 bedroom, because again then we have this culture of work from home, we have this culture of hybrid model now. So these dynamics have changed, और ये बहुत कम टाइम में चेंज हुआ है, 3 साल 4 साल में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है. और आपको ये टुडे वी आर सिटिंग एट अबाउट some $450 billion. By industry. 2030, it's going to be $1 trillion. 20% of the Indian economy is going to be driven by real estate. And this is just Indian economy. I'm just talking of Indian economy, Indian real estate. Okay. मैं इंडिया के बाहर बात ही नहीं करता हूँ. Okay. और हम भारत ही हैं, और भारत के बारे में बात करें, और जो भारत का ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, ये इतने सालों में आफ्टर द इंडिपेंडेंस कभी ऐसा मौका ही नहीं आया है. वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी हैपनिंग. और एक अगर आप बात करें तो गुजरात स्टेट करें, महाराष्ट्र करें, बिहार करें, अगर आप फुल पेज ऐड देखिए, एवरी स्टेट इज प्रमोटिंग देयर ओन स्टेट कि हमारे प्रदेश में आओ, हमारे में इसमें इन्वेस्ट करो. जी. जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2 सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं. वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बात करी, और दूसरा होता है रियल एस्टेट. सर बात करें अगर रियल एस्टेट की एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, तो सबसे पहला सवाल, भले अपना घर हो या कुछ हो, तो व्हाट आर द की फैक्टर्स जिसके बेसिस पे somebody कैन डिसाइड कि विच इज बेटर, रेडी टू मूव इन या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, या फिर लग्जरीज बेटर, इट गिव्स यू बेटर. अगर हम वेल्थ क्रिएशन को दिमाग में रखकर, ऑब्जेक्टिव लेकर, अगर तब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आप क्या बताएंगे कि क्या कंसिडर करना चाहिए? गुड क्वेश्चन हियर. सो अगेन दिस इज ऑल विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं दैट द कंसर्न पर्सन, द पर्सन इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, इनके पेरेंट्स जो थे वो नौकरी करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर में थे, एक अलग उनकी जर्नी होती है फ्रॉम अ वेल्थ पर्सपेक्टिव. अगर गवर्नमेंट में है तो उनकी जॉब सिक्योर्ड होती है, वो एक अलग पड़ता है. तो अगर उनकी खुद की पढ़ाई कहाँ हुई है, बहुत फर्क पड़ता है. व्हेन अ गर्ल और अ बॉय और अ मैन और अ वुमन इज एजुकेटेड अब्रॉड, then they come back with that particular thought process and mindset, and then even the house they want to buy becomes, there's a connectivity between their education and the home they want to buy. So this is the one of the key drivers of the change now. Second thing is a lot of the let's talk about the younger generation, because जो पहला घर है वो 22, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र वाले ही लेते हैं, उनको लोन अच्छा मिलता है. तो पहले यही लोग क्या कर रहे थे, EMI के बदले दे वर रेंटिंग आउट. नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अगर मैं उतना रेंट दे रहा हूँ और उससे अच्छा अगर मैंने उसको EMI में कन्वर्ट कर लिया है, तो 15, 20, 25, 30 साल जो भी आपका पीरियड है, एटलीस्ट वो आपका घर खुद का तो हुआ. करेक्ट.
तो नाउ ओनिंग अ होम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. सो हम ये अफोर्डेबल और लग्जरी का डिबेट को खत्म करते हैं. कंज्यूमर, एंड यूजर, बायर और इन्वेस्टर का डिबेट को खत्म करते हैं. जी. लेट्स टॉक आपका पहला घर, आपका दूसरा घर, आपका तीसरा घर. फेयर एनफ. अल्टीमेटली आप उस लग्जरी घर में जाएंगे. आज 50 करोड़ का, 60 करोड़ का, 70 करोड़ का जो घर है वो एक नॉर्मल फिगर हो गया. सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, देन यू स्टार्ट सेइंग कि वो अनअफोर्डेबल है, और जो मेरे को घर 3, 4, 5 करोड़ में मिल रहा है वो अफोर्डेबल है. ऐसा नहीं है. Okay. आप अंधेरी में लो, आप गोरेगांव में लो, आप पहला घर लो आपका. फोकस ऑन योर फर्स्ट होम. दैट इज इम्पोर्टेंट. And then you grow in life and you gain success. Eventually, then you will start moving. Then again, if you look at Bombay, let's talk about Bombay city. Ji. South Bombay was supposed to be the more expensive. Correct. And then people were selling. I mean, I remember 30 years back when I started my career, I was dealing more in the Juhu area. My clients were coming who have sold their house in Kapurane, Churchgate. Because then they were getting a larger amount of the value of the Correct. property was Obviously. there. तो उसके उसी amount से they could buy 2 houses. So for the 2 son or whatever they want to divide. Real estate also is very important from a division asset. आपका जो wealth की आप बात कर रहे हैं, financial wealth की बात कर रहे हैं, कि as a part of the wealth is a most important aspect of dividing that wealth. बहुत सारे रूल्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर आपने आपका वेल नहीं बनाया. तो यहाँ पे ये पॉइंट को भी मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ. कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसे हमारी इंडियन कल्चर हैबिट्स है, हम विल नहीं बनाते. अब कल कुछ भी हो सकता है और फिर वो कभी कभी बहुत लेट हो जाता है. इंडिया के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, इट्स नॉट वेरी फेवरेबल. एक प्रॉपर्टी, एक एसेट अगर आपने उसको ठीक से विल नहीं किया तो फिर आपके जाने के बाद बच्चों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब वो प्रॉपर्टी को बेचनी पड़ती है. और क्योंकि ये द रियल एस्टेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, इट्स नॉट गेटिंग चीपर. सर, आजकल जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो बहुत रिसर्च करता है. जैसे कि आपने कहा कि all the information is available on the internet, but ये information and RERA है, the guidelines are there, okay, लेकिन इसके बावजूद भी there are delays एंड जो है एक कॉन्फिडेंस की भी बात होती है कि क्या करें क्या नहीं करें. श्योर बहुत होता है चीज़ों को लेकर कि ये ज़रूर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. तो आपके अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, इज वांटिंग टू बाय अ हाउस, ठीक है, तो उसको क्या ड्यू डिलिजेंस क्या करना चाहिए, मस्ट डूज एंड एब्सोल्युटली नॉट टू डू? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये शायद थोड़ा सा मुश्किल है. अभी तक अनफॉर्चुनेटली द बायर जर्नी हैज नॉट बीन रियली कैप्चर्ड. प्रॉपटेक जो हमारी सो कॉल्ड डिजिटल एसेट कंपनीज हैं जो आज तक बनी है, वो एक लिस्टिंग साइट बन के रह गई है. लेट्स से आपको एक अंधेरी में है, माइक्रो मार्केट में आपको घर लेना है, तो माय एंटायर टीम, वी हैव अ फुल फ्लेज्ड टेक टीम राइट नाउ. They are actually working on this very, very specific perspective where that the consumer, the buyer, जो अपना स्पेशली जो पहला घर है, आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड एंड वेरी वेरी फोकस्ड कि वो पहला घर जो है, वो जिसको हम प्राइमरी होम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो वो जो प्राइमरी होम है, वो अपना पूरी जिंदगी का जो भी उसका पैसा है, मैं यहाँ पे एक हल्का सा आई विल गिव यू अ स्मॉल स्टोरी. एक 40-45 year old मेरा दोस्त है, और वो अपना पहला घर लेने की निकला कि मेरे को पहला घर लेना है. वो ही वाज स्टेइंग इन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट उसका बिक गया जो उनके फादर ने उनको दिया था, तो उसको एंसेस्ट्रल वेल्थ उसको अपना घर मिला. उसकी वाइफ भी काम करती है, वो भी खुद एंटरप्रेन्योर है. 15, 16, 17, 18 करोड़ के आसपास का उनका बजट था, जो कि अच्छा खासा बजट था जू पे लेने के लिए. बिफोर बाइंग दैट हाउस दे बिकेम सो नर्वस because they said कि I am putting my entire money, जो कि मेरा खुद का पैसा है और जो मेरे बच्चों के लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ, वो मुझे नहीं मालूम कि ये मेरा पहला जो मैं घर ले रहा हूँ ये राइट है कि नहीं. You will not believe what they've done. 4 lakhs, 4.5 lakhs के रेंट पे पर मंथ के घर में चले गए हैं, so that they become more prepared to buy that first actual home of their own from their own money to secure themselves and secure the future of their children. This is the gap which we are trying
to address. What is that intelligence can we keep bring on the table, which is available online, or even if the buyer is not getting all the information, they can make us a call. We have a team of advisors who will advise you, who will handhold you in taking this this entire buying journey कि आपको घर कहाँ लेना चाहिए. तो right now we are working on a lot of intelligence of the micro market itself, the supply, the demand. अगर हम अंधेरी की ही बात करें तो अब 2 bedroom के ले रहे हैं, तो 2 bedroom को हमने पूरा का पूरा ट्रैक कर रखा है. कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने अपार्टमेंट्स नहीं है, कितने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कितने अपार्टमेंट्स और आने वाले, और लास्ट कौन से प्राइस में कौन से एक वैल्यू पे डील ऑलरेडी हो चुकी है. तो वी आर एबल टू गिव यू सम काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन कि ये माइक्रो मार्केट में ये 2 bedroom का जो घर है इतने का होना चाहिए. इसके साथ हर एक माइक्रो मार्केट का जो लोकेशन है रोड बाय रोड फर्क पड़ जाता है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज नाउ डिवाइडेड इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर, विच इज व्हाट वी कॉल इज अ रियल IQ इंटेलिजेंस. सर आपने हम जब ये सवाल पूछ रहे थे आपसे, आपने एक वर्ड बोला प्रॉपटेक. आजकल उसके बेसिस पे आप क्या करिए, आपकी टीम कैसे क्या हैंडल करिए. एंड ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री आजकल टेक्नोलॉजी को लूप इन कर रही है, AI को बहुत कहते हैं ना ब्रांडिंग के साथ यूज कर रही है. तो रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी, हाउ इज दैट रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट? आपको लगता है कि सच में कुछ यूजफुल है, या फिर AI का बस शोर है, बस ब्रांडिंग है, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अनफॉर्चुनेटली जी इंडियन डेवलपर्स, अगर हम रियल एस्टेट की सप्लाई चेन डिमांड की बात करें तो देयर टेक्निकली ओनली 3 players in the real estate business, especially in India. One is the supply, which is by the developer. Second is a buyer, जैसे आपको आपका घर चाहिए, यार आप एक इन्वेस्टर है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेना है, और बीच में एक ब्रोकर होता है जिसको हम चैनल पार्टनर बोलते हैं. इसके अलावा और कोई इस चेन में और कोई नहीं है. Technology can only, so whatever technology, whatever PropTech has come right now, they were trying to solve the problem of the buyer in searching a home. जो मैंने आपको पहले बताया, आप ऑनलाइन जाके आपका घर ढूंढ रहे थे. डेवलपर का जो माइंडसेट है वो प्रॉपर्टी लेता है, उसके अंदर ध्यान दे रहा है, उसको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है कि उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उसको मार्केट करना है और उसको बेचना है. तो यहाँ पे कोई खास टेक्नोलॉजी का काम नहीं आया. लेकिन आज टेक्नोलॉजी is becoming important. PropTech, by the way, now is a $1 billion opportunity. We already have a few PropTech companies which have become unicorn. So जहाँ पे urban tech, construction tech आएगा, वहाँ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है. We are creating more than 100 to 150 data points, which will ultimately help you as a consumer, you as a buyer, you as the investor to make that informed decision of which asset you want to acquire and which asset you want to invest in. So that one gap is what we are trying from our side. That is my contribution. That is the house of SHK. That is the house of SHK which we are building. Real estate का एक पूरा इकोसिस्टम जो आप बना रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत फ्रेगमेंटेड था, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है. 35 साल से मैंने यही किया है. आज भी मेरा अगर ब्लड आप निकालोगे तो ब्लड ग्रुप R निकलेगा. तो मैं मेरी टीम बोलती है कि सर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा वो करते हो, बट मेरा वो पैशन है. रियल एस्टेट ही मेरे को समझ में आता है. What we have now realized that when you want to sell luxury real estate, you cannot just sell luxury real estate. Okay. You have to go with the entire ecosystem. Correct. So there are all these rings which are there, which are orbiting around that luxury home is dwelling. सबसे पहले आप घर अगर ले रहे हैं तो you want to have a very wonderful sofa, you want to have the best white goods, the curtains have to be very good. एक पूरा लाइफस्टाइल आपका उतना वैसा होना चाहिए. It's not just about the property. आप कैसे रह रहे हो, क्या आपको amenities मिल गई, लेकिन how much are you able to enjoy? तो डेवलपर ने तो आपको बना के दे दिया. Correct. अंदर तो फिर अगेन मैंने आपको वही बोला, आप सपने तो बहुत देखते हो. आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या वाइस वर्सा स्पाउस, वो सपने देखते हैं. उन्होंने ऑलरेडी एक पिक्चर देख ली है, शाहरुख खान की पिक्चर देख ली है, आलिया भट्ट की पिक्चर देख लिया, वहाँ घर बहुत सुंदर दिखाया है. अब वो रियल है कि AI है हमें नहीं मालूम,
लेकिन उनके जहन में तो आ गए ना। सो अब तक हम बात कर रहे थे क्या क्या चेंजेस आपने देखा, क्या एवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, यूथ आ रहा है, ये है वो, बट वो ऐसा कौन सा कांस्टेंट एलिमेंट आपको रियल स्टेट में देखने को मिला है जिससे, अगर हम अपनी बात करें ऑडियंस की, तो उनका जो बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे आपने कहा कि अब आप प्रोटेक्ट करने का आप एंडीवर कर रहे हैं, तो वो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि ये सबसे कांस्टेंट एलिमेंट है रियल स्टेट का, चाहे जो हो जाए, दिस विल नॉट चेंज, ऐसा कुछ है? If I can use the word, taking the liberty, it's pride. Oh, okay. I can see the happiness on the face of the individual when the key of that house is given to them. It's a very emotional moment. Similar to buying, again मैं repeat वही कह रहा हूँ, पहला घर, पहला कार, चाहे वो पहला स्कूटर हो, पहला मोटर बाइक हो, आप सीधा जाके मर्सिडीज नहीं खरीदते हो ना। बहुत सारी हमारी तो जर्नी है। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। हर इंसान आज जो बिलियनर है वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये लेके आया है, कहीं ना कहीं वो एक अपने क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे सोया है, और खाना भी जो खाया है सबके वही एक ही है, वड़ा पाव ही खाया है। तो कहानी आप किसकी भी उठा के देख लीजिए, वो कहानी कहीं ना कहीं वड़ा पाव से शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं उस एक बेंच, एक रेलवे स्टेशन के बेंच से, कहीं ना कहीं वो एक स्लम से जहां पे उसका खुद का घर नहीं था, कुछ ऐसे कोई एक दोस्त के घर से शुरू होती है। तो जर्नी वहां से शुरू होके 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 वो आज एक अल्टामाउंट रोड पे, नेरीमन पॉइंट पे उसका एक ऑफिस है। तो दिस इज द हैप्पीनेस विच आई गेट, दिस इज द प्राइड आई गेट, दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज द इंडिया स्टोरी विच वी ऑल एज इंडियंस, एज भारतीय शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। और ये जो अपॉर्चुनिटी आज आ रही है, दिस इज द मोमेंट आई वांट टू टेल द यूथ ऑफ दिस कंट्री, ये ऐसा आपको मौका कभी नहीं मिलने वाला। तो जितनी आप में जान है प्लीज लगाइए, काम करिए, मेहनत करिए, आपको जो अपनी जिंदगी में एंजॉय करना है वो भी करिए, कोई उसमें गलत नहीं है। आई ऑलवेज से नथिंग इज ब्लैक, नथिंग इज व्हाइट, नथिंग, you can do what you want to do. There is no box according to me. So don't think out of the box. Just do what you like. बस आपका कॉन्शियस क्लीन होना चाहिए, तो फिर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे और आप उस वेल्थ को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यहीं पे जो कोशिश है कि आपको फिर अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। सो क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप ग्रोइंग, एंड you don't have to worry about anything else. The environment itself is there. We are on a very very high wave. तो आप खाली उस हाई वेव पे रहिए, आपको वेव ही आपको ऊपर लेके जाएगा, and you will enjoy the next 5, 10, 15 years is India's story, and nobody in this world can make a difference for that India growth story. I'm very very strong believer of the Indian growth story. Wow. Sangeet ji, thank you so much. It was such a pleasure having you here with us. आपके insights, आपके vision, absolutely very inspiring, and we wish the House of SHK all the very best. It will be a privilege and a pleasure, and we need all your wishes. We've got a very young team, very passionate team. Each team member is skilled in what they have learned, what they want to do. And I also keep telling each team member the same thing. And that is also I want to share on this in a moment on this channel, is what we're also building is a very mentee-led company. So we want to each team member, this is my personal, if I can say, dream, is to give them that opportunity to, there's something called ownership, right? So I want them, each individual, to take ownership, and in the coming few months, coming few years, this is what we want to build, that they become a co-founder, they take ownership of that vertical which they want to build. So we want to be basically a factory of entrepreneurs. So if you have any entrepreneurial dream, with my experience of 35 years, my network, my relations of who's who, I've been blessed by sharing the podium, by sharing the room, by having dinner, sipping coffee, a glass of wine with the who's who of the Indian industry. I want the youth to be a part of this journey so we can all grow together. Brilliant. Thank you so much, Sangeet ji. Been my pleasure.
और हमारे व्यूअर्स से अगर आपको आज की कन्वर्सेशंस उतनी ही मजेदार लगी जितनी हमें ये करते हुए बातें करते हुए मजा आया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं हूँ विज्ञा गुप्ता और मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। Until then, keep telling your story.